वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाउ आर यू? What is going on? You need to put your answers in the comments. I am asking you so many questions and you need to answer in the comment section. This is how you practice, okay? Practice is important and you need to write daily life sentences. Whatever you speak daily, you need to write it and then you need to practice it aloud. Practice it loud, right? Practice is the key to success, dear friend. So I have just started the class before 7 a.m. So I will start the lecture at 7 a.m. Till then, if you have any questions, you can ask me. Okay. So how is your English learning going on? Tell me. What kind of challenges are you facing? So today is Monday. Today is Monday means Bole Day. Bole means Shivji. So Monday belongs to Bole Baba. So on Monday, so many people go to Shiv Mandir. You can say so many people visit Bole Temple. They offer their prayers in the temples. Also offer milk, fruit, and things specific to Bole Baba to the Shivling in the temple. Like this, you can daily practice or whatever is happening in your life daily basis. You can practice that. So for spoken English, you don't need sentences from America or England. Okay. You can simply think about your regular life. Whatever is happening in your regular life, you can think about it and just practice. Think about today. Today is Bhole Baba Day, Shivji Day, Monday. So, what is specific about Monday? You can think about that and write approximately 5 to 20 sentences. What is specific about Monday? What is special about Monday? Like yesterday, it was Sunday. So, you can write about Sunday also. But like today is 9th September, how you are going to spend this day. This is one topic, how you are going to spend this day. Another topic is what is normally done on Mondays. That is another topic. Another topic is why Monday is very important in our life. Okay. So, like this, you can think and you can try to speak on different topics. And this is called real practice. If you think that somebody will tell you some fancy sentences, you will listen to them, then yes, obviously you will find those sentences fancy, but you will not be able to speak English. If you want to speak good English, then you have to think about the real life. Whatever is happening in your real life, you have to think about that. Okay. So this is the homework I have given in advance today that you can write different topics related to Monday itself. Okay.
Okay, so some sentences on how important is Monday, some sentences on what makes Monday important, what makes Monday an important day of our life. Right. So think about that and talk about yesterday, talk about future. Like this, keep talking, man. See, if you want to learn talking, then you have to talk. If you want to learn talking, then you have to talk. If you want to learn running, then you have to run. If you want to learn swimming, then you have to start swimming. By thinking, nothing happens. So many people keep thinking that I will speak very good English one day, and that day never comes. I will make lots of money one day, and that day never comes. I will travel the whole world one day, and that day never comes. So, whatever you want in your life, start doing it from today, whether it is spoken English, making money, traveling the world. And the third one is for me. Third one is for me that I want to travel the whole world. And I think I have not started traveling. I don't want to give any excuses, but yes, I have to start traveling. And yeah, I think today is Monday. So let's start with Ujjain Mahakal. So very soon I will visit Mahakal Temple Ujjain. And this is the first traveling adventure after this Gyan I am giving you today. Then maybe some other places. I have been to many places. I have been to many places already in India. But now, like if you want to travel the whole world, first finish country, India, finish the important places. There are so many places in India, so many. And you know what, Mister? If you leave your house today, if you leave your house today, if you have that guts, if you have that fire in your kidneys, then leave your home right now, today, and just start going places with passion and lots of fire. Visit places, make videos, put them on YouTube, and you will see in the very first month, you will be making approximately 50,000 rupees. In the very first month, if you do it properly, in the very first month, you can make 50,000 rupees. That's the power of digital today. So you are fulfilling your fantasy. You are going places, you are having fun, you are enjoying, then you are making money. And I have told this so many times to my students that you can travel and you can make money. And you will get sponsors also very soon because people notice that who is traveling regularly, companies, brands, they find you and they pay you to talk about their services or to talk about their products. Are you getting me? So just get out of your home, leave the comfort zone, go anywhere or everywhere. Say today I'm in Aligarh, today I'm in Agra, I'm visiting these places in Agra. This is food, this is temple, this is Taj Mahal, this is river, then this is Bharatpur, and this is Jaipur. So like this you do for the 15 days. Within 15 days you go viral because you are giving fresh content every day to your YouTube, right? To your Facebook, to your Instagram. And all these three platforms are giving you money. So what is happening in today's class is this is a spoken English class. Of course, I am speaking English and I am telling you how to make money at the same time, fulfill your fantasies, fulfill your dreams. So this is very easy and it has been my dream for a long time that I will be traveling the whole world and making money, enjoying life at the same time. And yes,
that time is, I think, around the corner that I start traveling. Okay. So whatever corner I have decorated right now, this is temporary. The real corner is the real places I will be visiting in coming years. That would be the real corner. So, Mr. Chetan, do you like this corner? I hope you like. A little changes, right? Some speakers I have put, flower vases I have put. Okay. Okay. So, let's talk about Monday. Let's talk about Monday. Monday means मन से काम करने वाला दिन. मंडे के दिन जिस दिन मन से काम कर लिया उसका दिन बन गया. दैट इज कॉल्ड मंडे. मन डे मन से काम करने वाला दिन है और ज्यादातर लोग मन से काम नहीं करते हैं. इसलिए ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं. ज्यादातर लोग मजा नहीं ले पाते लाइफ का. राइट. मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि हिमेश रेशमिया जैसी आवाज आ रही है? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मेरी आवाज हिमेश रेशमिया जैसी आ रही है. बट ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ. माइक टेस्टिंग 1 2. ओके ठीक है, अभी ठीक है. आई थिंक जो है सो है. अब ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. कंगना रनावत थोड़ी चेंज कर सकती है अपनी आवाज को. ऐसे ही मैं भी नहीं कर सकता. ऐसे ही द सेम वे आई कैन नॉट चेंज माई वॉइस. ओके. थैंक यू. सो मंडे, मन से काम करने वाला दिन. क्या एक नई बात बता दी मैंने आज. मंडे. द पीपल हु गो फॉर जॉब्स, दे फील वेरी अनहैप्पी अबाउट मंडे. अरे यार, आज तो ऑफिस जाना है, मंडे है. आज तो नौकरी पे जाना है, मंडे है. तो वो नौकरी वाले लोग होते हैं. बट अगर वो थोड़ा सा माइंड से चेंज कर लें अपना, देन दे से वाओ इट्स मंडे, आई हैव टू गो टू ऑफिस. तो जाना तो है ही ऑफिस. तो बुरा सोच के क्यों जाओ. अरे यार, आज मंडे ऑफिस जाना है. ऐसा नहीं बोलने का, सीधा बोलिए वाओ आज मंडे है, आज हम काम करेंगे, आज हम ऑफिस जाएंगे. खुश हो गए. मंडे है, आज मुझे क्लास लेनी है सुबह 7 बजे, मैं रो रहा हूँ. 7 बजे नहीं क्लास स्टार्ट. अरे आज हमने 10 मिनट पहले करी थी क्लास स्टार्ट. टुडे वी स्टार्टेड द क्लास 10 minutes earlier. Why? Because I am excited about my work. I am excited about my work. I love my work. I love what I do. I love what I do. And the secret is start loving what you do. Start loving what you do. I love what I do. And what I do, I love. I love what I do. And I love what I do. What I do, I love. I love what I do. Love what you do what you love. Like this, it is said. Love what I do, what I love, what I do, love what I do. Okay. So let's continue about Monday. So मैं मंडे के कुछ सेंटेंसेस लेने वाला हूं और मैं आपको बीच बीच में उसकी ग्रामर टिप्स भी देने वाला हूं. मेरी क्लासेस में आपको बोर्ड नहीं मिलेगा या मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं. आपने एक चीज नोटिस की होगी काफी दिनों से, दैट आई डोंट शेयर माय स्क्रीन. उसका एक रीजन है कि हम लोगों को एक आदत पड़ जाती है कि बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है और हमें समझ में आ रहा है. ऐसा नहीं है कि बोर्ड से समझ में नहीं आता है. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट मुझे पता है इट्स लैंग्वेज. ये भाषा है और ये भाषा जो है सुनने से और बोलने से ज्यादा अच्छी आती है. तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. नोट्स बनाने हैं बट कोशिश कीजिए कि कानों का ज्यादा इस्तेमाल करें और होठों का ज्यादा इस्तेमाल करें बोलने के लिए. होठ का मतलब पूरा मुंह का इस्तेमाल करें, गले का भी इस्तेमाल करें, जीभ का भी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो मंडे के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बीच में ग्रामर, प्रपोजिशन, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी. यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हाट इज हैपनिंग. सो द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट द
फर्स्ट। लिखो मत अभी, बाद में लिखना मन करे तो, अभी जो है फ्लो खराब हो जाएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ करे तो लिखा करो। अभी वो जमाने गए, हर चीज लिखी जाएगी। ओके, दोज टाइम्स आर गॉन व्हेन यू नीड टू राइट एवरीथिंग। डोंट राइट एवरीथिंग, राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और राइट इन पॉइंट्स। पूरा सेंटेंस नहीं लिखने का, डोंट राइट फुल सेंटेंस, राइट इन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लिखना चाहिए हमेशा। ऐसे लिखेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी लिखते लिखते। ओके, सो ऑलवेज राइट इन keywords. So Monday, that's the first sentence. Let's start with the first sentence about Monday. Monday, Monday. डे को थोड़ा सा खींच देते हैं अंग्रेज। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हम भी खींच सकते हैं। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हमारी भी आवाज जो है थोड़ी सी अंग्रेजों जैसा हो जाएगा। टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टमाटर को इंग्लिश में टमाटर बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं टोमेटो बोलते हैं, नहीं, वो तो इंग्लिश है उसकी। टमाटर की इंग्लिश टोमेटो है। टमाटर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सवाल अलग है ये। टमाटर की इंग्लिश क्या होती है? वो होती है टोमेटो। टमाटर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वो है टमाटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से सुनो आप, और फिर समझो, और फिर उस पर फॉलो करो। सो सेंटेंस है आज का, मंडे सेट्स द टोन फॉर द एंटायर वीक। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और ये सेंटेंस मैंने कहाँ सुना था? आई हर्ड दिस सेंटेंस इन कॉर्पोरेट, जब मैं जॉब करता था वहां सुना था ये। और ये सेंटेंस वहां के बाद मुझे आज मिला है। थैंक गॉड मैं वहां हूं नहीं आज, क्योंकि उनकी टोन अलग तरीके से सेट होती थी। मंडे सेट्स द टोन फॉर द एंटायर वीक। मंडे क्या करता है? टोन सेट करता है। सेट्स द टोन, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जो काम हमेशा होता है, जो करता है, ता है, ती है, ते है, आता है, एंड में रटा लगाया था हमने। जो काम हमेशा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मंडे सेट्स, सेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मंडे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए सेट में एस लगा हुआ है। मंडे सेट्स द टोन, टोन सेट करता है। टोन मतलब किस तरीके से बांसुरी बजेगी पूरे 7 दिन की, पूरे हफ्ते की, उस टोन को सेट करता है फॉर द एंटायर वीक। एंटायर, ENTIRE, एंटायर मीन्स पूरा का पूरा। वीक, वीक मीन्स हफ्ता, सप्ताह, 7 दिन। तो मंडे सेट करेगा कि अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। कैसे सेट करेगा मंडे? हाउ मंडे विल डू इट? बिकॉज यू विल डू समथिंग स्पेशल ऑन मंडे। व्हाट इज स्पेशल? प्रैक्टिस मोर, डू मोर, प्लान मोर, डिलीवर मोर। सो प्रैक्टिस मोर, डू मोर, प्लान मोर, डिलीवर मोर। सब कुछ मंडे को ज्यादा कर दो। मंडे को सब कुछ ज्यादा किया तो पूरा हफ्ता आपका औसम जाने वाला है। दैट इज कॉल्ड मंडे सेट्स द टोन फॉर द एंटायर वीक। मंडे सेट्स द टोन फॉर द एंटायर वीक, पूरा हफ्ता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ प्रोडक्टिव मंडे। अ प्रोडक्टिव अ प्रोडक्टिव मंडे। अ प्रोडक्टिव मंडे। प्रोडक्टिव मंडे मतलब मंडे को आपने खूब काम किया, खूब काम हुआ। प्रोडक्टिव मीन्स खूब काम हुआ। प्रोडक्टिव मीन्स होता है खूब काम होना, बहुत सारा काम होना। सो आई एम अ वेरी प्रोडक्टिव पर्सन, मीन्स मैं बहुत काम करता हूँ। प्रोडक्टिव मीन्स काम करता हूँ, और जब काम करता हूँ तो उसका नतीजा भी आता होगा, यानी प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। मैंने ज्यादा लोगों की सेवा करी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बना दिए, ज्यादा कपड़े सील दिए, ज्यादा सफाई कर दी, ज्यादा लिख दिया, कुछ भी ज्यादा कर दिया। दैट इज कॉल्ड मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो अ प्रोडक्टिव मंडे, अ प्रोडक्टिव मंडे कैन, कैन, अ प्रोडक्टिव मंडे कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल कैसा? जो एबिलिटी बताता है। सो अ प्रोडक्टिव मंडे कैन, एक प्रोडक्टिव मंडे क्या कर सकता है? अ प्रोडक्टिव मंडे कैन क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। लीड मतलब नेतृत्व कर सकता है, दिशा दिखा सकता है। नेतृत्व करना माने दिशा दिखाना, दिशा दिखाने माने नेतृत्व करना। नेतृत्व मीन्स लीड करना, लीड करना मतलब लीडर। सो मंडे लीडर बन सकता है। अ प्रोडक्टिव मंडे कैन लीड
टू अ सक्सेसफुल वीक। एक बेहतरीन, जिस दिन मंडे को अगर ज्यादा काम कर दिया जाए तो एक सफल सप्ताह की जो है दिशा तय की जा सकती है। अ प्रोडक्टिव मंडे कैन लीड टू अ सक्सेसफुल वीक। वीक, वीक, डब्ल्यू को हमेशा किस करके बोलना चाहिए, वीक। कमजोर वाला नहीं है ये सप्ताह वाला वीक है। ओके, ऑसम। मैनी पीपल, पीपल बोलते हैं ना, पीपल का पेड़। लोगों, लोगों की अंग्रेजी क्या होती है इंग्लिश में, पीपल, लोग, पीपल। पीपल में थोड़ी सी फा फा कर दो, फीफल, फीफल, फी, फा भी आएगा इसमें, इसमें पा भी आएगा, इसमें फा भी आएगा। तो पा, फा, ह, तीन चीज आती है इसमें। फीफल, फीफल, मैनी पीपल, पीपल, पीपल का पेड़। पीपल भी बोल सकते हो, अगर दिक्कत आ रही है तो पीपल बोल दो। बट इसमें समझो पा, फा, हा तीनों आते हैं। मैनी फी, पा, फ, ह, फी, और बड़ी की मात्रा, फी, फी फल, मैनी पीपल, मैनी पीपल यूज मंडे, बहुत सारे लोग मंडे का प्रयोग करते हैं। मैनी पीपल यूज मंडे टू स्टार्ट न्यू हैबिट्स, बहुत सारे लोग सोमवार का प्रयोग करते हैं नई आदतें डालने के लिए। जैसे मैंने आज नई आदत डाली, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट, शनिवार को नहीं दी थी ना, तो थोड़ा उसका जुर्माना भर रहा था मैं। मैनी पीपल स्टार्ट, मैनी पीपल यूज मंडे, मैनी पीपल प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैनी पीपल यूज मंडे, मंडे ऑब्जेक्ट हो गया, टू स्टार्ट न्यू हैबिट्स, ये आपका एडिशनल फ्रेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, डिटेल्स हो गई सेंटेंस की। सो मैनी पीपल यूज मंडे टू स्टार्ट न्यू हैबिट्स, न्यू हैबिट्स। हैबिट्स क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आया, न्यू। नाउन से पहले कोई भी शब्द आए और नाउन की बात करें, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। A word which comes before noun and talks about that noun is called adjective. वैसे इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये हो सकती है, एनी वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अंग्रेज बहुत बड़े पागल के बच्चे थे, अभी भी हैं वो, दिमाग नाम की चीज नहीं है उनमें। एडजेक्टिव में डी साइलेंट है, बट डी साइलेंट है तो डी लगाई क्यों थी भाई, ठीक है, जब साइलेंट ही रखना था लगाई क्यों थी। कोई आदमी मुझे कल समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई आप अपने हिसाब से समझोगे इंग्लिश को। मैं, बेटा हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, समझेंगे क्या, तुम अभी इंग्लिश न सीखे हो न समझे हो, हमें ज्ञान पेल रहे हो। तो एडजेक्टिव होना चाहिए। अंग्रेज कहते नहीं एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है, मतलब डी साइलेंट है। तो डी साइलेंट है तो डी लगाई क्यों थी बे, है पागल आदमी, लगाई क्यों थी। बोलो हाँ सही है कि नहीं, बताओ यार, तुम लोग बताओ यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन मंडे, मंडे के दिन, ऑन मंडे, मंडे के दिन, ऑन मंडे, मंडे के दिन ऑन आता है। तो यहां पर एक चीज समझिए कि दिन, मंडे एक दिन है, दिन के लिए ऑन आया है। ऑन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन, किस दिन कहां पर कैसे क्या हो रहा है, ये प्रपोजिशन बताता है। नाउन से पहले एक ऐसे शब्द आते हैं जो पोजीशन बताते हैं। तो दिन के लिए ऑन आता है, दिन के लिए क्या आता है, ऑन। एट नहीं आता, इन नहीं आता, एट मंडे नहीं आएगा, इन मंडे नहीं आएगा, ऑन मंडे। वर्क शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, या फिर कुछ लोग बोलते हैं इसको स्केड्यूल्स, SCHEDULES। ऑन मंडे वर्क शेड्यूल्स एंड प्रायोरिटीज, वरीयताएं, क्या पहले करना है, प्रायोरिटी मीन्स क्या पहले करना है, आर ऑफन सेट, आर ऑफन सेट। ऑन मंडे वर्क शेड्यूल्स एंड प्रायोरिटीज आर ऑफन सेट। मंडे के दिन अक्सर हम शेड्यूल बनाते हैं कि पूरे 7 दिन क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, ये मंडे के दिन सेट किया जाता है। बट मैं आपको एक सीक्रेट बता देना चाहता हूं यहाँ पे, शेड्यूल वीड्यूल प्रायोरिटी वैरायटी वो लोग सेट करते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं।
ऐसा मुझे लगता है। कल को मेरे थॉट्स चेंज हो सकते हैं, बट आज के थॉट्स सुन लो। शेड्यूल क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, टाइम टेबल बनाना चाहिए, आई एम इन फेवर ऑफ दैट। बट सुपर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। क्या बोला मैंने? इन द लाइफ ऑफ सुपर सक्सेसफुल पीपल देयर इज नथिंग मच, देयर इज नथिंग मच। दे हैव द सेम बोरिंग थिंग टू डू, दे हैव द सेम बोरिंग थिंग टू डू। अब आप मुझे बताओ, यू टेल मी दैट मंडे सुबह 7 बजे मैं क्या करूंगा? मंडे सुबह 7 बजे मैं क्या करने वाला हूं, बताओ मुझे आप कमेंट करके। मुझे टाइम टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं है। सुबह 7 बजे मैं मंडे को क्लास लूंगा इंग्लिश की। मंगलवार को सुबह 7 बजे क्या करूंगा? इंग्लिश की क्लास लूंगा। बुधवार को सुबह 7 बजे क्या करूंगा? इंग्लिश की क्लास लूंगा। तो मुझे शेड्यूल बनाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। मेरा तो बना हुआ है। तो जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका शेड्यूल बना हुआ होता है, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका 7 बजे का भी सेट है, 9 बजे का भी सेट है, 12 बजे का भी सेट है, 6 बजे का भी सेट है, 8 बजे का भी सेट है। उनका सेट है कि 9:30 बजे आंख बंद करके सो जाते हैं। तो जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे हैव एवरीथिंग सेट एंड दे डोंट चेंज इट ऑफन। उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग होती है। सुपर सक्सेसफुल पीपल हैव अ बोरिंग लाइफ एंड दे एंजॉय इट फुली। वो अपनी बोरिंग लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं। ओके। बट फिर भी हमें सभी लोगों का ध्यान रखना है, तो सेंटेंस है, ऑन मंडे वर्क शेड्यूल्स एंड प्रायोरिटीज आर ऑफन सेट। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, सामान आना है, सामान जाना है, तो ऐसी जगहों पर चीजें जो है होती हैं, टाइम टेबल, शेड्यूल्स, मीटिंग्स होनी है, क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट विजिट करनी है, तो ये सब चीज भी होती हैं, ऐसा नहीं है। बट सुपर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सक्सेसफुल पीपल, सुपर सक्सेसफुल पीपल। जो शेड्यूल वीड्यूल बनाते हैं वो नॉर्मल सक्सेसफुल पीपल होते हैं। तो पहले आप नॉर्मल बनिए, फिर उसके बाद सुपर बनिए। इट्स ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज आ स्ट्रॉन्ग मंडे। आ स्ट्रॉन्ग मंडे, एक मजबूत सोमवार। तो सोमवार हो गया नाउन, स्ट्रॉन्ग हो गया उसका एजेक्टिव, विशेषता बता रहा है, और ए भी उसकी विशेषता बता रहा है स्ट्रॉन्ग की। तो वो एक उसका मतलब है एक, और वो भी एडजेक्टिव होता है एक तरीके से, कई बार वो एडवर्ब भी हो जाता है, क्योंकि वो तो मंडे की बता रहा है। स्ट्रॉन्ग की अगर बताता होता तो एडवर्ब हो जाता, बात सही है। तो आ स्ट्रॉन्ग मंडे कैन बूस्ट योर मोटिवेशन। आ स्ट्रॉन्ग मंडे का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ स्ट्रॉन्ग मंडे? स्ट्रॉन्ग मंडे मतलब मंडे के दिन आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, मंडे के दिन आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, मंडे के दिन आपने ज्यादा क्लाइंट्स बना लिए, मंडे के दिन आपने ज्यादा आउटरीच कर दी, मंडे के दिन आपने ज्यादा प्रैक्टिस कर दी। देन तो पूरा हफ्ता आपका मस्त जाने वाला है। तो क्योंकि आप सफलता मिलती है तो थोड़े से ज्यादा खुश रहते हो यार। ओके, सफलता मतलब मस्त चीज है, उसकी टक्कर में कुछ है ही नहीं। ओके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मंडेज आर क्रूशियल फॉर प्लानिंग। मंडेज आर क्रूशियल। क्रूशियल एक वर्ड है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, क्रांतिकारी, क्रांतिक। CRUCIAL, मंडेज आर क्रूशियल। तो नए वर्ड सीखिए। और चैट जीपीटी तो आपको सिखाता ही रहता है, मंडेज आर क्रूशियल। आप चैट जीपीटी को बोलो जाके कि 10 सेंटेंसेस दे दो, हाउ इंपॉर्टेंट मंडे इज। मैंने भी चैट जीपीटी से निकाला, मैं भी कम दिमाग लगाता हूँ। क्यों? चैट जीपीटी मेरे लिए भी है भाई। अरे गुरुजी आप तो चैट जीपीटी से पढ़ाते हो भाई। एक सेंटेंस के बीच में जो 50 तरह का ज्ञान दिया जा रहा है ना, वो चैट जीपीटी में नहीं है। अब ये कहोगे हम तो भैया चैट जीपीटी से सीख लेंगे, तो सीख लो भाई। जो 135 तरह का जो एडिशनल ज्ञान दिया जा रहा है वो चैट जीपीटी नहीं दे सकता आपको। होप यू आर गेटिंग इट। सो मंडेज आर क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क्स। प्लानिंग करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए टास्क्स को, काम को, बहुत क्रूशियल है। फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स मैं हमेशा गलत बोलता था, शायद आप भी गलत बोलते होंगे, मुझे यहाँ पे ध्यान आ गया तो मैं आपको बता दूं। जो स्टूडेंट्स जो वर्ड है, मैं गलत बोलता था पहले। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आज भी मैं बहुत सारी चीजें गलत बोलता हूँगा, बट
कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं। मैं कहता हूं आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छा फील कीजिए। क्योंकि हमें दुनिया की सारी चीजें नहीं आती, कभी आ भी नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे दुनिया की सारी चीजें आती हों। मैं अगर अंबानी जी से कहूं कि हमारे घर आओ, चूल्हे पे बैठ के पानी के हाथ की रोटी बना दो, तो आपको लगता है अंबानी जी को आती होगी? नहीं आती। अब मैं कह सकता हूँ यार इतना बड़ा आदमी है, रोटी बनानी नहीं आती, नहीं कहेंगे, अलग से दिमाग में सेट है ना उसको रोटी बनाए। तो जब अंबानी को रोटी बनानी नहीं आती, मुझे भी कुछ नहीं आता। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमें नहीं आती। तो ज्यादा गिल्टी फील करने का नहीं। तो स्टूडेंट जो वर्ड है, मैं इसको शायद आज भी गलत बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एस से शुरू होता है ये वर्ड। किससे शुरू होता है? एस। और हम बोलते हैं इसको इस। स्टूडेंट। इस ई से शुरू करते हैं हम, छोटी ई से। स्टूडेंट। तो ये गलत है। स्टूडेंट को इससे शुरू नहीं करना है, हमें ऐसे बोलना है, श। श। स्टूडेंट। स्टूडेंट। सा से शुरू करना है। और ये बहुत मुश्किल था, बहुत अजीब सा लगता है ये, बट मेरे लिए तो मुश्किल था। आप कर पाओ तो अच्छी बात है। जैसे कि स्टोरी, तो इसको भी हम बोलते हैं स्टोरी। स्टोरी। ये भी स्टोरी नहीं होता, ये होता है स्टोरी। स्टोरी ऐसे बोलना है, सांप की तरह स करना है। स्टोरी। 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 पहले हल्का सा स करना है, सटोरी। सटोरी सुनाई देगा पहले, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। स्टोरी। स्टूडेंट। 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 स्टोरी। स्टोरी। लाइक दिस। तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने आज से लगभग 6 साल पहले ये समझा था, फिर उसको प्रैक्टिस किया। आज भी बहुत सारे उच्चारण की गलती हो सकती है, और उच्चारण के कहीं पर भी मार्क्स नहीं काटे जाते। nowhere marks are deducted for pronunciation. Okay, so that is very important. So for students, Monday is the day. For students, for students, for students, Monday is the day to focus on stra- focus on मंडे के दिन स्टूडेंट्स किस पे फोकस करेंगे? अरे भैया, दे हैव टू फोकस ऑन स्टडीज एवरी डे। बट ठीक है, ज्यादा फोकस करना है ना मंडे के दिन। फॉर स्टूडेंट्स, मंडे इज द डे टू फोकस ऑन स्टडीज। 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 सो for students, Monday is the day to focus on studies. So इंग्लिश के बारे में एक बात कही जाती है, जो मैं हमेशा बताता भी रहता हूँ आप लोगों को, कि इंग्लिश के लिए आपका जो मुंह है, जो होठ है, जो गाल है, जो जीभ है, इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल, एकदम लूज रखना है इनको। इसको बोलते हैं लूजन योर माउथ। मुंह को ढीला रखिए। टाइट मुंह से हिंदी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश नहीं बोल सकते। ओके। तो मुंह को लूज रखना बहुत जरूरी है। तो मैं कई बार वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ या क्लास लेता हूँ, तो बीच बीच में ऐसे ही चलता रहता है मेरा मुंह। ये देखा होगा आपने। तो ये इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। अजीब सा लगता है, बट यू हैव टू डू इट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। इंग्लिश अगर आपको सुननी है तो एक तो यूट्यूब चैनल है, द इंग्लिश स्पीचेस। और एक है सदगुरु जग्गी वासुदेव। एक है रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसका मुंह ऐसे ऐसे ही चलता रहता है, विंग, 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 मशीन की तरह बोलता है वो। बट लाइक हमारे सीखने के लिए सही है वो बंदा, क्योंकि उसके होठों की कॉपी अगर की जाएगी तो जल्दी समझ में आती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। businesses businesses often see Monday as the day to strategize. businesses often see Monday। बिजनेसेस मतलब जो बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो मंडे को अक्सर देखती हैं कि वो ऐसा दिन होता है जिस दिन हम स्ट्रेटजी, रणनीति बनाएंगे पूरे हफ्ते की। बिजनेसेस ऑफन सी मंडे। मंडे को वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं, देखते हैं, मानते हैं
एक सेंटेंस का मीनिंग देखिए, बिजनेसेस ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, सी मंडे, सी मंडे मतलब मंडे को देखते हैं, मंडे सामने खड़ा है उनके, नहीं, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग कि मंडे उनके सामने खड़ा है। इसका मतलब है बिजनेसेस ऑफन सी मंडे का मतलब है बिजनेसेस मंडे को मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कंसीडर करते हैं, ऐसा वो मान के चलते हैं। बिजनेसेस ऑफन सी मंडे एज, बिजनेसेस ऑफन सी मंडे इज द डे, बिजनेसेस मान के चलते हैं कि मंडे वो दिन होता है, सोमवार वो दिन होता है जिस दिन हमें रणनीति बनानी चाहिए, इज टू स्ट्रेटजाइज, हमें रणनीति स्ट्रेटजाइज। तो आज रणनीति बनाओ भाई, अगले 7 दिन कैसे बिताने वाले हो, कितनी प्रैक्टिस करने वाले हो इंग्लिश की, कितनी, कितना ज्यादा काम करने वाले हो, कितना ज्यादा रिपोर्ट्स बनाने वाले हो, कितने ज्यादा क्लाइंट्स को आउटरीच करने वाले हो, कितने ज्यादा वीडियोस बनाने वाले हो, कितने ज्यादा रीमिक्स बनाने वाले हो, कितना ज्यादा तांडव मचाने वाले हो, आज डिसाइड करो मंडे को, बिकॉज मंडे इज द डे। अच्छा, मंडे को तो 7 दिन की होती है, बट एवरी डे इन द मॉर्निंग यू कैन डू इट। आज मैं कल से ज्यादा करूंगा, आज मैं रीमिक्स ज्यादा बनाऊंगा, आज मैं वीडियोस भी ज्यादा बनाऊंगा। देखो रीमिक्स का एक जो फीचर आया है, मैं इसको अपने यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था पहले बट अभी पता चल चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रीमिक्स है आपको इमीडिएट सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, रीमिक्स से आपको इमीडिएट वॉच टाइम भी आ जाता है, रीमिक्स से आपका चैनल सुपर फास्ट ग्रो हो जाता है। आपको अगर रीमिक्स से कोई ऐतराज है तो पहले रीमिक्स इस्तेमाल कर लो, राइट, और बाद में अपने चैनल से डिलीट कर देना जब आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, या उनको अनलिस्टेड कर देना, प्राइवेट कर देना। और रीमिक्स करते टाइम आपको ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है कि जो आपका चैनल है उससे रिलेटेड ही रीमिक्स हो। पता चले आपका चैनल तो है डिजिटल मार्केटिंग का और आप फैशन मॉडल की वीडियोस को रीमिक्स कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा सही नहीं जाएगा। तो चैनल के हिसाब से रीमिक्स कीजिएगा, ठीक है। कहीं पता चला आपके मम्मी पापा ने देख लिया, मेरी मम्मी देखती नहीं है, पापा है नहीं, तो मुझे वो टेंशन नहीं है, बट हल्की सी आप ले सकते हो। द एनर्जी ऑन मंडे कैन इन्फ्लुएंस टीम मोराल, द एनर्जी ऑन मंडे, जो मंडे की एनर्जी होती है, कैन इन्फ्लुएंस, वो कर सकती है प्रभावित, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित, टीम मोराल, टीम मोराल, मोराल क्या होता है यार ये, मतलब मोराल जो है ना ये, इसका मीनिंग मुझे गूगल से देखना पड़ेगा कि मोराल का मीनिंग क्या होता है। बताओ, आप मुझे बताओ मोराल, मुझे कुछ चीजें ना इंग्लिश में ही समझ में आती हैं, हिंदी में समझ में नहीं आती हैं। मोराल क्या होता है ये, मोराल, MORALE, पहले मैं इसको मोरल ही समझता था, बाद में पता चला मोरल में ई लगा दो तो मोरले नहीं बनता, मोराल बन जाता है। मतलब अंग्रेज है ना, मतलब यार कुछ भी कर सकते हैं। MORAL मोरल, उसमें ई लगा दो तो मोरले बनना चाहिए, पर वो नहीं बना, वो बना मोराल। और मोराल मीन्स होता है मतलब मन की ताकत। तो अगर मंडे बढ़िया होगा, मंडे की एनर्जी ज्यादा होगी, तो टीम का मोराल जो है वो प्रभावित हो सकता है। प्रभावित कैसे, मंडे की एनर्जी अच्छी है, सेल अच्छी हो गई, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, मैनेजर ने हंस के बात कर ली, तो टीम के मन की ताकत बढ़ गई, मनोबल बढ़ गया टीम का। और उस दिन सेल्स कम हो गई, मैनेजर ने डांट दिया, कंपनी के माहौल में नेगेटिविटी आ गई, या कुछ भी आ गया, तो टीम का मन की शक्ति कम हो गई, टीम का मनोबल गिर गया, नैतिक शक्ति, मानसिक शक्ति गिर गई। तो मोरल मीन्स होता है मानसिक शक्ति, मनोबल, मन की शक्ति, अंदर की ताकत, काम करने की इच्छा। मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस करने का मन नहीं है आज, यानी मनोबल नहीं है। और मनोबल नहीं है मतलब आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश सीखने से क्या होगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको आइडिया ही नहीं है। आप पता नहीं किसी और कारण की वजह से इंग्लिश सीख रहे हो, पता नहीं क्यों सीख रहे हो। बट जब मैं इंग्लिश सीखता था ना भाई साहब, आग थी मेरे अंदर, मेरे अंदर ये आग रही है। मतलब मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू भगवान ईश्वर, कि मेरे अंदर ये रही है। जब 2006 में मुझे ध्यान है, मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और 2006 में अप्रैल, मई, अप्रैल मई, मई जून जुलाई अप्रैल, अप्रैल में मुझे ध्यान है मेरे फाइनल एग्जाम्स हो गए थे BA के। तो
तारीख मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 15-16 तारीख अप्रैल में शायद हमारे एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे ग्रेजुएशन के। बीए की थी मैंने, आधी नकल से, आधी पढ़ाई से, आधी गुंडागर्दी से। हाँ मतलब हम गुंडा टाइप के थे। अवधूत सर भी थे। अरे मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट अपन थे, मतलब पूरी तरह गुंडा नहीं थे, 30-35% तो थे हम। गुंडा गुंडा मतलब बदतमीज वाले गुंडा नहीं थे हम दादा दादा थे। बदमाश, बदमाश नहीं थे, मतलब सही तरीके से कैसे बताऊं, मतलब चलती थी हमारी। गुंडे हमारे चेले थे। दादागिरी टाइप का था हमारा जलवा। तो वो आज भी, आजकल भी रहता है अपना, ऐसा नहीं है कि आज भी हमने छोड़ दिया है वो। आप हमारा फेसबुक टाइमलाइन फॉलो करेंगे देन देख सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज रहती हैं ऐसी। और काम भी करते हैं हम समाज के लिए, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, तो ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई, मेरा फाइनल एग्जाम हुआ। तो जिस दिन मेरा फाइनल एग्जाम हुआ उसके ठीक दूसरे दिन, देखो जब मैं बीए कर रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बीए फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में समझा दिया था। एक दिन मैंने उनसे पैसे मांगे थे, 100-500 रुपए मांगे थे। तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि हमारे पास आपके लिए धन नहीं है। अल्टीमेट डिसीजन दे दिया था उन्होंने, हमारे पास आपके लिए धन नहीं है। आप कीजिए, खाइए, कमाइए, बाहर में जाइए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डैडी ने हमको बोल दिया था। और आई थिंक ये एक बेस्ट मैसेज था डैडी की तरफ से। बेस्ट मैसेज, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, कि अगर आप 20-21 साल की उम्र में एक लौंडे को ये बोल दो कि जाओ भाड़ में जाओ, जो करना है करो, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग अ फादर कैन से टू हिज सन। ये सबसे जरूरी है मैं कहूंगा। अमेरिका में ज्यादातर फैमिलीज अपने बच्चों से 18-19-20 साल की उम्र में कह देती हैं, निकलो जाओ अपना करो देख लो। हमारे यहाँ, हमारा तो बालक है अभी, तो हमारा छोरा बालक है, हमारा तो बेटा अभी सूद हुआ है, अभी तो बालक है। मतलब वो 10 साल का तब भी बालक, 20 साल का तब भी बालक, 25 साल का तब भी बालक। वो बालक साला कुछ कर नहीं पाता है। वो भी कहता है मैं तो बालक हूँ, गोदी में बैठ जाए जाके मम्मी की, मैं बालक है तो। ठीक है, 20 साल का सांड हो गया बालक कैसे भाई तू, समझ रहे हो? तो हमारे पिताजी ने हमको बोल दिया निकलो। तो भैया ओहो, ग्रेजुएशन के ठीक बीच में, मतलब सेकेंड ईयर में शायद मेरा दाखला हुआ था। शायद दाखले हेतु मैं पैसे मांगने आया था, या कुछ किराए विराए के लिए मांगने आया था। तो डैडी ने साफ मना किया था कि पैसा है ही नहीं, तुम मांगने की बात मत करो, पैसा है ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। तो मुझे खुशी हुई थी उस दिन। थोड़ा सा अजीब सा लगा था, बट ओवरऑल मुझे खुशी हुई थी कि अब मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है। अब मैं शेर हूँ, बब्बर शेर, अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। डैडी ने मुझे लाइसेंस दे दिया है कि अब जाओ अपना काव कमा। तो उस समय फिर मेरे पास कुछ नहीं था, देन आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस। अब देखो ट्यूशन अपना ना शुरू से ही रहा है, कोचिंग वोचिंग पढ़ाने का। तो ट्यूशन देने शुरू किए। 1000 रुपए का ट्यूशन तो नहीं होता था भाई उस जमाने में, मुझे ध्यान है 300 रुपए का ट्यूशन था शायद। 300 रुपये महीने मिलते थे। और 10 बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया था उन दिनों। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था इंग्लिश का। और उन 10 बच्चों की परफॉर्मेंस गजब आई थी। और पैसे भी ठीक ठाक आ गए थे। 3000 रुपये बहुत होते थे उन जमाने में। आपको आज लग रहा हो कम से, बट बहुत होते थे 3000 रुपये। मैं तो आज भी 3000 रुपये को बहुत मानता हूँ। जैक डेनियल्स की एक बोतल आ जाती है, ठीक है, तो बहुत होते हैं 3000 रुपये। तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में कुछ महीने होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं करना होता, मतलब क्लास में जाओ मत जाओ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन ने सोचा यार करें क्या, या तो गुंडागर्दी कर लें, बदमाशी कर लें, कुछ कर लें। मैंने कहा यार देखो यार, ग्रेजुएशन में रहेंगे, क्लास जाएंगे, कमरे पे जाना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, कैंटीन में जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, कोई लड़की सेट हो गई उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी बहुत सारे खर्चे होंगे अगर पढ़ाई करेंगे तो। मैंने कहा यार पढ़ाई ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो फिर मैं दिल्ली चला गया, और मैंने वहां पर ना, मतलब हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी हुआ करती थी हमारी फैमिली की। तो हमारे अच्छे खासे ट्रक ब्रक हुआ करते थे, तो फैमिली के ही। तो मैंने भैया से बोला कि भैया हमें अभी अपने इस पर रख लो, ट्रक ब्रक पे तो पूरा इंडिया भी घूमेंगे, और जो पैसा देना हो दे देना। तो शायद उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने कोई काम वाम नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ। तो हम भाड़ में चले गए, हम दूसरी जगह ट्रक पर गए, और हमने बोला कि भाई हम आपके ट्रक पर रहेंगे। तो उन्होंने दूसरे ट्रक पर रखवा दिया, ये अच्छी बात की उन्होंने, थैंकफुल। तो वहां में 1000 रुपये महीने मिलते थे, और पूरा इंडिया घूमने को मिलता था, जगह जगह जाने को मिलता था। और हाँ,
ट्रक पे चढ़ने और उतरने से, दिन में 8-10 बार जब आप ट्रक पे चढ़ोगे उतरोगे तो बॉडी बनती है। ठीक है, अब जिनकी नहीं बनती उनका नहीं मालूम मुझे, वो सिगरेट बीड़ी दारू ज्यादा पीते हैं शायद, बट अपनी बन रही थी। और ट्रक पे चढ़ना एक अपने आप में एक्सरसाइज होती है। उतरना, फिर टायर खोलना, जोड़ना, माल लदवाना, माल उतारना, शीशे साफ करना, तो बॉडी फिट हो गई थी भाई। आई मीन इट। मतलब बॉडी मेरी सेट हो गई थी। मैं ज्यादा नशे वशे नहीं करता था ना, ज्यादा भांग फूकना, चिलम फूकना, अफीम दारू नहीं करता था मैं। तो मेरी बॉडी सेट हो गई थी, और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं। ड्राइवर मेरी तरफ देख देख के कहता था साला ज्यादा इतरा रहा है। तो ये था। तो टॉपिक क्या था, हम टॉपिक से जाके भटक रहे हैं बहुत ज्यादा। तो टॉपिक यही है कि मतलब हमें स्पेशल काम करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। तो ये हमने किया था, वहां से पैसा आया था हमारे पास, 1,000 रुपये महीना आता था। तो 5-6 महीने हम ट्रक पे रहे। कॉलेज का कोई खर्चा नहीं हुआ, सारा खर्चा ट्रक पे मिलता था। 5-6 हज़ार रुपये हमने सैलरी ले ली, और मैंने ऊपर से भी जुगाड़ तुगाड़ करके, फ्रॉड करके, 4 नंबर 420 करके 5-10 हज़ार रुपये और कमा लिए थे। तो 12-14 हज़ार रुपये जेब में थे। फ्रॉड मतलब जैसे ड्राइवर ने बोला कि सब्जी ले आओ, तो सब्जी आई 70 रुपए की, हमने बोल दिया 90 रुपए की आई है, तो 30 रुपए बच गए। चुंगी पे टैक्स देना होता था ट्रक वालों को, तो वहां टैक्स जाता था टन के हिसाब से, 1 टन माल है ज्यादा तो 100 रुपए। और हमारा माल होता था 10 टन ज्यादा होता था ओवरलोड, तो हमें ड्राइवर देता था 1,000 रुपये, दे आओ। हम वहाँ पुलिस वालों को पकड़ा देते थे 500, 700, 600, 800 रुपये, तो 200, 300 उसमें बच जाते थे। तो ये सब चीजें सीखनी होती हैं लाइफ की। नेगोशिएशन स्किल्स बोल सकते हैं इनको। तो ऑल दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो सीखनी पड़ती हैं लाइफ में। ठीक है। और हम जैसे टीचर क्या है ना, बातों बातों में कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं टॉपिक से। चलो, तो वापस आते हैं मंडे पर। मैं खुद ही भूल गया कहाँ थे हम लोग, बट मंडे पे वापस आ जाते हैं। तो मंडे इज द डे टू रीसेट एंड रीफोकस आफ्टर द वीकेंड। कहने का मतलब है, जो भी आपकी लाइफ में बसड़ हुई है पिछले हफ्ते, संडे को या संडे तक, या मैं तो कह रहा हूँ मतलब कितनी बढ़िया सेंटेंस है, सिर्फ मंडे की बात नहीं है, हर दिन, कल तक जो भी हुआ, कल तक जो भी हुआ उसको भूल जाओ, रीसेट करो। तो मंडे इज द डे। मंडे वो दिन है, देखो मंडे इज द डे। एक देखो, मंडे इज द डे, मंडे वो दिन है। या सुनील इज द पर्सन, सुनील वो व्यक्ति है। आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूं। राहुल इज द बॉय, राहुल वो लड़का है। अलीगढ़ इज द सिटी, अलीगढ़ वो शहर है। जबलपुर इज द सिटी, जबलपुर वो शहर है। इंडिया इज द कंट्री, इंडिया वो देश है। ये एक सेंटेंस आप सीख लो। मंडे इज द डे, मंडे वो दिन है। इंडिया इज द कंट्री, भारत वो देश है। सुनील इज द पर्सन, सुनील वो व्यक्ति है। अनीता इज द गर्ल, अनीता वो लड़की है। मनु भाकर इज द गर्ल, मनु भाकर वो लड़की है जो दिखने में प्रियंका चोपड़ा से कई गुना ज्यादा सुंदर है। एंड उसने भारत का नाम रोशन किया है हर तरीके से। सो सैल्यूट फॉर मनु भाकर। ओके। सो मंडे इज द डे, मंडे वो दिन है टू रीसेट, अपने आप को रीसेट करें, रीफोकस करें आफ्टर द वीकेंड। जो वीकेंड हुआ, देखो वीकेंड में अपन लोग कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कोई बसड़ नहीं मचाते। ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए है। वो क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे में अपनी लाइफ की बैंड बजा लेते हैं पूरे तरीके से। कॉर्पोरेट लोग अपनी लाइफ की क्या बजा लेते हैं, बैंड बजा लेते हैं, पूरे तरीके से बैंड बजा लेते हैं। वो फ्राइडे को दारू पियेंगे, सैटरडे को फिल्म देखेंगे, पिज्जा खाएंगे, पूरे दिन सोएंगे, रात को जागेंगे, फिर संडे को 12 बजे तक सोएंगे, फिर शाम को फिर एंजॉय करेंगे, फिर रात को 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे। तो सोमवार को जगने में उनकी बैंड बज जाती है। तो उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि मंडे इज द डे टू रीसेट एंड रीफोकस आफ्टर द वीकेंड। बट अगर आप लाइफ को सेट रखोगे अक्षय कुमार की तरह, मेरी तरह, मोदी की तरह, और भी लोग हैं दुनिया में जो 9:30 बजे सो जाते हैं, तो आपको ना रीसेट रीफोकस करने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे रीसेट रहो, आप 24 घंटे रीफोकस रहो, आपकी लाइफ सेट है। लाइफ को जितना सिंपल रखोगे, जितना टाइम टेबल के साथ रखोगे, उतना बढ़िया है। आपको हर दिन संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि मैं आज अपनी लाइफ को सेट कर लूं। बट अगर अभी तक नहीं करी है अपनी लाइफ सेट, तो आज कर लो भाई। ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बोला था आज मंडे जो है भोले बाबा डे भी होता है। आज की जो क्लास है कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, क्योंकि शनिवार को मैंने क्लास ली नहीं थी, उसकी भरपाई कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको दे रहा हूँ।
चैट जीपीटी में तो नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें, राइट और रॉन्ग? 100% नहीं मिलेंगी। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट मंडे एज भोले बाबा डे। मैनी डिवोटीज, बहुत सारे भक्त, ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवा, ऑब्जर्व मंडे, मंडे को ऑब्जर्व करते हैं एज भोले बाबा डे। तो मैं अपनी बिटिया को बोलता हूँ कि बेटा टुडे इज भोले बाबा डे, मंडे तो भोले बाबा डे। सो मंडे, मैनी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा ऑब्जर्व मंडे एज भोले बाबा डे। फास्टिंग ऑन मंडे, मंडे को व्रत रखना इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग शिवा डिवोटीज, शिवा के भक्तों में कॉमन है मंडे को व्रत रखना। फास्टिंग ऑन मंडे इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग शिवा डिवोटीज। इन लिखने की जरूरत नहीं है सारे सेंटेंसेस, तो मैं आपको ऑन डिमांड भेज दूंगा, चैट जीपीटी से बनाए हैं मैंने, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मंडे इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब है माना जाता है, मंडे इज कंसीडर्ड, मंडे को माना जाता है एन ऑस्पीसियस डे, एक पवित्र दिन, एन ऑस्पीसियस, AUSPICIOUS, AUSPICIOUS, ऑस्पीसियस, 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 पवित्र। मंडे इज कंसीडर्ड, मंडे को माना जाता है एज एन ऑस्पीसियस डे टू वर्शिप भोले बाबा, मंडे को वो पवित्र दिन माना जाता है जिसमें भोले बाबा की पूजा की जाती है, या फिर मंडे को ऐसा पवित्र दिन माना जाता है जिस दिन भोले बाबा की पूजा की जाती है। भोले बाबा की पूजा तो हम किसी भी दिन कर सकते हैं, बट मंडे को खासकर वो दिन माना जाता है जिस दिन भोले बाबा की पूजा की जाती है। डिवोटीज, डिवोटीज visit, visit, devotees, visit, devotees, visit, devotees, devotees, जो टफ है मेरे लिए भी टफ है आपके लिए भी है, वो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके बता रहा हूं आपको। devotees, devotees, भक्त, visit, 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 visit Shiva temple, 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 devotees visit Shiva temple on Monday टू सीक ब्लेसिंग्स, सीक माने लेने, सीक माने लेना, ढूंढना, किसी चीज के पीछे जाना, सीक करना, मुझे चाहिए, ठीक है। सो मंडे इज द, मंडे क्या बोल रहा था मैं, मंडे, सॉरी, डिवोटीज विजिट शिवा टेम्पल, डिवोटीज भक्त, श्रद्धालु भक्तगण शिवा टेम्पल जाते हैं ऑन मंडे टू सीक ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने जाते हैं। चांटिंग ओम नमः शिवाय ऑन मंडे ब्रिंग्स पीस, वैसे तो ओम नमः शिवाय कभी भी बोल लो पीस मिलेगा, बट मंडे को शायद ज्यादा मिलता है। चांटिंग ओम नमः शिवाय ऑन मंडे ब्रिंग्स पीस। ऑफरिंग मिल्क टू शिवलिंगा ऑन मंडे इज रेवर्ड रिचुअल, ऑफरिंग मिल्क टू शिवलिंगा, शिवलिंगा को मिल्क ऑफर करने से मंडे के दिन इज अ रेवर्ड, रेवर्ड, REVERED, रेवर्ड माने होता है पवित्र, सम्माननीय, धार्मिक, पवित्र, सम्माननीय, धार्मिक, रिचुअल, परंपरा, तो एक धार्मिक परंपरा है शिवलिंग को सोमवार के दिन दूध चढ़ाना। सो ऑफरिंग मिल्क टू शिवलिंगा ऑन मंडे इज अ रेवर्ड, REVERED, रेवर्ड रिचुअल। ओके, तो एक नया वर्ड आप नोट कीजिए, रेवर्ड जो वर्ड है वो नया वर्ड है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो श्रद्धेय, श्रद्धा वाला जो होता है, तो उसको रेवर्ड बोलते हैं, ठीक है भाई। ऑन मंडेज, ऑन मंडे डिवोटीज मेडिटेट, जो भक्तगण हैं वो मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, टू कनेक्ट विद भोले बाबा, भोले बाबा से कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, भोले बाबा कौन है। बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि भोले बाबा कौन है। भोले बाबा, पूरा यूनिवर्स भोले बाबा है, पूरा नेचर भोले बाबा है, हवा पानी जल पहाड़ धरती वर्ती सब कुछ भोले बाबा है। तो अगर आप मेडिटेट करके भोले बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो आपके आसपास की सराउंडिंग है, इसी से जुड़ जाओ, यही भोले बाबा हैं, भोले बाबा ही हैं ये। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरा जल आकाश पानी नदी, सब भोले बाबा है। ओके, so on Monday, devotees meditate to connect with Bhole Baba. Bhole Baba is believed, माना जाता है, to grant wishes when prayed to on Monday.
माना जाता है कि मंडे के दिन जल्दी जल्दी भोले बाबा आपकी बात मान लेते हैं। तो मंडे के दिन भैया स्पेशल किया करो पूजा वूजा उनकी। वियरिंग व्हाइट ऑन मंडे, सफेद पहनना मंडे के दिन, इज सिंबॉलिक फॉर शिवा डिवोटीज। ये मतलब अच्छा माना जाता है, चिन्ह माना जाता है कि भोले के भक्त हैं तो सफेद पहनेंगे। वियरिंग मंडे, सॉरी, वियरिंग व्हाइट ऑन मंडे इज सिंबॉलिक फॉर शिवा डिवोटीज। मंडे इज अ डे ऑफ डिवोशन, भक्ति का दिन है। प्योरिटी, पवित्रता का दिन है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का दिन है फॉर भोले बाबा फॉलोअर्स। मंडे इज आर डे ऑफ डिवोशन, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर भोले बाबा फॉलोअर्स। चलिए, लास्ट पार्ट है आज का। आज प्रैक्टिस खूब हो रही है हमारी। कॉरपोरेट जो लोग हैं उनकी लाइफ में मंडे कैसे काम करता है, इस पर काफी कुछ मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी आज की क्लास में, बट और देखते हैं। मंडे इज द स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम जिस दिन शुरू होता है वो दिन मंडे है। वर्क वीक मंडे टू फ्राइडे होता है कॉर्पोरेट में। मंडे इज द मंडे इज द स्टार्ट ऑफ द वीकेंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड ऑन मंडे। बहुत सारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स मंडे को होती हैं, क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टी वार्टी कर चुके होते हैं, फिर उन्हें ध्यान आता है अचानक से, ओहो हो काम भी करना होता है, ओ मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो। सो ये रीजन है। मैनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड ऑन मंडे। ऑन मंडे प्रोफेशनल्स आर ऑफन रिव्यू एंड प्लान देयर वीक। मतलब वो देखते हैं कि भाई इस हफ्ते हमें क्या करना है। सो ऑन मंडे प्रोफेशनल्स ऑफन, अक्सर रिव्यू करते हैं, रिव्यू एंड प्लान देयर वीक। ऑन मंडे प्रोफेशनल्स ऑफन रिव्यू एंड प्लान देयर वीक। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज फील अ मिक्स ऑफ एंटीसिपेशन एंड प्रेशर ऑन मंडे। मैंने बताया ना आपको, ये कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं ये फ्राइडे को मजा लेना शुरू कर देते हैं। फ्राइडे इनकी काम खत्म हो जाता है तो इनको लगता है लाइफ खत्म हो गई, मतलब काम खत्म। इनको ऐसा लगता है कि अब काम जीवन में कभी नहीं करना, तो फुल मस्ती में आ जाते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को ही फुल मस्ती में आ जाते हैं। शनिवार को लेट जगेंगे, शनिवार को फिर फुल मस्ती करेंगे, फिर इतवार को लेट जगेंगे, फिर इतवार को फुल मस्ती करेंगे। तो मंडे को बेचारों को ना अपना कोई बटन दबा के सेट करना पड़ता है। तो यही सेंटेंस लिखा है चैट जीपीटी ने भी कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज फील अ मिक्स ऑफ एंटीसिपेशन, अरे क्या होगा क्या होगा, एंड प्रेशर, और प्रेशर भी फील करते हैं मंडे। अरे यार मंडे है, तुमने नौकरी वालों को ज्यादातर को यही कहते सुना होगा, अरे यार आज मंडे ऑफिस जाना है। तो सालों की लग गई। अबे तो मंडे तो खुश होके जाना, रो काय को रहा है, सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रही है भाई। समझ में आ रहा है? मंडे इज द डे टू कैच अप ऑन ईमेल्स एंड टास्क। हाँ, सैटरडे संडे तो तुमने खोल के भी नहीं देखा ना। तो मंडे इज द डे टू कैच अप ऑन ईमेल्स एंड टास्क। भैया अपना जीमेल खोल के देख लो, आउटलुक खोल के देख लो, कोई ईमेल ईमेल आई होगी इंपॉर्टेंट। काम भी देख लो, कुछ काम भी आया होगा मैनेजर्स का, सीनियर्स का, या क्लाइंट्स का, तो चेक कर लो। ठीक है, हमने तो संडे को भी किया था। हम संडे को दोनों काम कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। कॉर्पोरेट वाले मंडे को मस्ती नहीं करते, हम मंडे को भी मस्ती करते हैं, काम भी करते हैं। हम तो सातों दिन मस्ती करते हैं और सातों दिन काम करते हैं। मंडे सेट्स द पेस, सेट करता है पेस, पेस माने गति, स्पीड, फॉर डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। मंडे को डिसाइड करते हैं लोग कि डेडलाइन क्या है, डिलीवर कितना करना है, सब कुछ। सो मंडे सेट्स द पेस फॉर डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। मंडे को हाई तौबा मच जाती है ऑफिस में, एकदम सब सीधे हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, शर्ट पैंट के अंदर चली जाती है, जूता पॉलिश हो जाता है, टाई टाइट हो जाती है। सब मंडे ऐसे रहता है इनका। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर ऑफन डिस्कस्ड इन मंडे मीटिंग्स। मंडे मीटिंग्स में इनकी रणनीतियां बनती हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स आर कॉमनली हेल्ड ऑन मंडे इवनिंग्स। नेटवर्किंग इवेंट्स भी मंडे इवनिंग होते हैं, क्योंकि ये लोग भी सैटरडे संडे मजे ले लिए कहीं, बट नेटवर्किंग इवेंट मेरे हिसाब से संडे को ज्यादा होते हैं। ये सेंटेंस चैट जीपीटी ने गलत दिया है। नेटवर्किंग इवेंट्स आर कॉमनली हेल्ड ऑन मंडे इवनिंग्स। बोल रहा है ठीक है, बट मेरे हिसाब से संडे को होती हैं। एम्प्लॉयज फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑन मंडे। एम्प्लॉय फोकस करते हैं गोल सेट करने पे, प्रायोरिटी सेट करने पे मंडे के दिन। और मंडे इज अ फ्रेश स्टार्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स टू अचीव देयर टारगेट्स। उनके टारगेट होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, और मंडे ही वो दिन होता है जिस दिन वो अपना टारगेट जो है करते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास काफी लंबी हुई, लगभग 1 घंटा हमें हो चुका है पूरा आज बातें करते हुए. सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप यू लर्नड अ लॉट. आई होप यू लाइक्ड माई स्टोरीज, माई गॉसिप्स, एवरीथिंग. कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लीव इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन ज्वाइन माई लाइव क्लासेस फॉर लाइफ टाइम. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.